See, dear students, in the second video, we will derive the relation for the condition for the balancing of the Wheatstone bridge using the Kirchhoff's rule. Now, to this derivation is very important. This derivation will be asked for 5 marks. Obtain the condition for balancing of Wheatstone bridge using Kirchhoff's rule. So before going that, we have to understand this diagram. Again, this diagram I have explained you in the Wheatstone bridge, but again I am explaining here. P, Q, R, S. These are the four resistors. P, Q, R, S are the 4 resistors. They are connected in the form of a quadrilateral. ये किस फॉर्म में कनेक्ट किया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल में. ओके. E क्या है? बैटरी है. E जो EMF प्रोवाइड करता है. K क्या है? प्लग की है. तो इसमें क्या किया हुआ है? G इज द गैल्वेनोमीटर. G इज व्हाट हियर? गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में कितना करंट पास होता है? IG ऑफ करंट होता है. अभी क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर हमने क्लिक किया तो क्या हो गया? I अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस. I विल बी एट द पॉइंट A. I विल बी गेटिंग इन 2 पार्ट्स, I1 एंड I2. P और R में डिवाइड हो जाएगा. तो P में कितना करंट जाएगा? I1. R में कितना जाएगा? I2. अभी ये I1 अमाउंट ऑफ करंट B पॉइंट पे आने के बाद फिर से क्या होगा? डिवाइड होगा. कितना में जाएगा? सम करंट विल गो इन द गैल्वेनोमीटर. द करंट विच इज गोइंग इन द गैल्वेनोमीटर विल गिवन बाय IG. सो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ करंट विल गो इन द PC. सो it is given by I3. How will you get at the value of I3? Here it is coming I1. Here it is going IG. So I3 will become what? I1 minus IG. क्लियर हो गया? तो BC में जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज I3 इज इक्वल टू I1 माइनस ऑफ IG. नाउ फर्दर व्हाट विल हैपन? IG amount of current is flowing through this, I2 amount of current is flowing through this. So I2 and IG will meet at the point D. And this current, now it will flow through S. So that is called as I4. I4 will be equal to what? I2 plus IG. So I4 is equal to I2 plus IG. Now this current and this current will meet at C. So already we know that IG will get cancelled, will get I1 plus I2. So the total current at C is again I is equal to I1 plus I2. So the current which has been divided at point A is again meeting at point C, and the same amount of current will get at the point C. So this is the complete explanation for the Wheatstone bridge. So now here there are 2 loops, A, B, D, A and B, C, D, B. 2 लूप है इसके अंदर. ये दोनों लूप से वी हैव टू डिराइव द रिलेशन. सो रिलेशन में क्या लिखेंगे? सबसे इन अबव सर्किट PQRS आर द resistors connected in the form of a quadrilateral ABCD. PQRS are the resistances connected in the form of a quadrilateral ABCD. ओके. I1, I2, I3, I4. यहाँ पे करंट कितना है? I1 एक है, I2 है, I3, I4. I1 I2 यहाँ पे डिवाइड हो गया. I3 इधर जा रहा है, I4 इसमें जा रहा है. तो I1 करंट किससे पास होगा? P से. I2 किससे? R से. I3 किससे? Q से. और I4 किससे? S से. I1, I2, I3, I4 आर द करंट्स थ्रू P, R, Q, S respectively. What is G? G is the resistance of the galvanometer. What is IG? IG is the current in the galvanometer. What is E? EMF of the cell. Clear हो गया? So once again listen here. Again go see the diagram. This is very important diagram. If you not put the arrow mark, then you will not get the marks. Arrow marks is very important here. So A, B, C, D is a quadrilateral. This quadrilateral is made by PQRS. AB में P लगाया हुआ है, BC में Q लगाया हुआ है, AD में R लगाया है, DC में S लगाया हुआ है. तो PQRS क्या है? 4 resistors are there. They are connected in the form of a quadrilateral. तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने लिख लिया है. I1, I2, I3, I4 क्या है? करंट थ्रू P, R, Q and S. IG क्या है? IG is the current through the galvanometer. What is G? Resistance of the galvanometer. Abhi now there are 2 loops to derive this relation. First loop is ABDA.
and second loop is B, C, D, B. So when we apply the Kirchhoff's loop rule to which loop? A, B, D, A. So what will get on applying Kirchhoff's loop rule to loop A, B, D, A? What will get? I1P. Current in this is what? I1. Resistance is P. I1P. Then we are coming here and we are going in the same direction. So we are moving along the direction of current. So current is Ig and resistance is G. Ig into G. But when we come here at the point D, we are going in upward direction, but current is coming in this direction. So yesterday we have seen the sign convention. When the current is along the against the direction, then we have to take the minus sign. So here it will become what? Minus of I2R is equal to 0. Clear हो गया? I1P plus Ig into G minus I2R is equal to 0. For the balancing network, Ig is equal to 0. बैलेंसिंग नेटवर्क के लिए क्या चाहिए अपने को? Ig क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में वेर एवर Ig हो वहाँ पे 0 पुट कर देंगे. तो ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा इधर? I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0. तो सेकेंड रिलेशन क्या होगा? I1P plus 0 minus I2R is equal to 0. So now what will happen? Minus I2R को सेकेंड साइड भेजेंगे. तो I1P is equal to I2R. तो माइनस I2R है, इसको सेकेंड साइड भेजें तो क्या हो जाएगा? प्लस I2R. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी हैव अप्लाइड द Kirchhoff's लूप रूल टू A, B, D, A. पहले क्या किया? A, B, D, A. इस लूप को Kirchhoff's लूप अप्लाई किया, Kirchhoff's लूप रूल. तो इससे मुझे क्या मिलेगा? I1P प्लस I2G माइनस I2R. ये हमने देखा I1P प्लस I2G माइनस I2R. माइनस क्यों लिया? क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? A, B, D, A. तो ऐसा आ रहे हैं, ऐसा है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मगर इधर आने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं. मगर करंट किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में. हम ऊपर के डायरेक्शन जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में. तो क्या हो जाएगा? माइनस I2R हो जाएगा. तो व्हाट इज़ द बैलेंसिंग कंडीशन? Ig इज इक्वल टू 0. सो जहाँ पर Ig है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे. हमको क्या मिलेगा? I1P इज इक्वल टू I2R. इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट विल डू? नाउ विल अप्लाई द Kirchhoff's लूप रूल टू द सेकेंड लूप. बी सेकेंड लूप कौन सा है? B, C, D, B. B, C, D, B. ये सेकेंड लूप है. B, C, D, B. तो B, C, D, B है. तो यहाँ से हम जा रहे हैं, तो B, C में जाएंगे तो क्या होगा? I3 की जगह में क्या लिखेंगे? करंट कितना है? I1 माइनस Ig इंटू Q. इधर क्या लिखा? I1 माइनस Ig इंटू Q. अब देखो यहाँ से इधर आए, इधर आके इधर आ रहे हैं, मगर ये जो करंट है ये ऊपर साइड जा रहा है. हम क्या हो रहा है? करंट इस डायरेक्शन में, करंट इसका एरो इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में. तो करंट क्या हो जाएगा? माइनस. तो इसके लिए क्या होगा? माइनस ऑफ I2 प्लस Ig इंटू, ये कौन सा है? रेजिस्टेंस S है. तो क्या हो जाएगा इधर? माइनस ऑफ I2 प्लस Ig S. इधर आने के बाद फिर हम ऊपर जा रहे हैं ऐसा, मगर करंट कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है. हम इस तरह से जा रहे हैं, B, C, D, B. ऐसा आके ऐसा जाएंगे. अब हम ऊपर जब जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा इधर? माइनस ऑफ Ig इंटू G इज इक्वल टू 0. अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. I1Q माइनस IG Q माइनस I2S माइनस IGS माइनस Ig इंटू G इज इक्वल टू 0. अभी सेकेंड क्या करेंगे? फॉर बैलेंसिंग Ig इज इक्वल टू 0. फॉर बैलेंसिंग Ig इज इक्वल टू 0 तो क्या करेंगे? जहाँ पर भी Ig है वहाँ पे 0 पुट करेंगे. ये Ig है, इधर Ig है, इधर Ig है. तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. अब नाउ व्हाट विल रिमेन? I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0. तो माइनस को सेकेंड साइड भेजें तो क्या हो जाएगा? प्लस I2S. आ रहा है समझ? इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. I1P I2R is equal to I1Q is equal to I2S. Left hand side is divided by left hand side. I1P by I1Q
इज इक्वल टू I2R बाय I2 एस, I2 I1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अपने को P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय एस। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर हो गया। तो ये है तुम्हारा 5 मार्क्स का डेरिवेशन, किसके लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आपको फास्टली रिवाइज कर देता हूँ। सो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 5-6 बार 10 बार 5-6 बार डिराइव करो, ड्रॉ करो। PABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS क्या है, रेजिस्टेंस है। किस फॉर्म में रेजिस्टेंस अप्लाई किए हैं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में। अभी जैसे ही मैंने इंसर्ट किया है प्लग की को, तो यहाँ से क्या होगा, करंट पास होगा। तो आई अमाउंट ऑफ करंट विल पास। ए पॉइंट पे करंट क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 है I2 में। अब वही करंट I1 इधर गया B में, फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक जाएगा IG में और रिमेनिंग करंट कहाँ जाएगा, I3। तो I3 कितना होगा, I1 माइनस IG। अब ये जो करंट इधर आ रहा है I2 इंटू G इधर आएगा, और ये करंट इधर आ रहा है, तो ये दोनों करंट किस पॉइंट पे मिलेंगे, D पॉइंट पे, और वो करंट कहाँ जाएगा, S से। तो करंट कितना हो जाएगा, I4 इज इक्वल टू I2 प्लस IG। I3 इज इक्वल टू कितना है, I1 माइनस IG। तो A B C D ये पूरा एक लूप बन गया, मगर इस लूप में अभी 2 लूप हैं, A B D A और B C D B। दोनों लूप को हमको अभी कंसिडर करना है। क्लियर हो गया। तो ये फिगर होने के बाद फास्ट लेवल राइट PQRS क्या है, 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। PQRS क्या, 4 रेजिस्टेंसेस दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। I1 I2 I3 I4 क्या है, करंट है, किससे पास हो रहे हैं, I1 किससे पास होता है, P से, I2 किससे पास हो रहा है, R से, फिर I3 किससे पास हो रहा है, Q से, और I4 S से। तो उधर लिख लिया। What is G? G is the resistance of the galvanometer. What is IG? IG means current flowing through the galvanometer. What is the EMF of the cell? So first what we'll do, we will apply Kirchhoff's loop rule. कौन से लूप को अप्लाई करेंगे, A B D A। 2 लूप है, A B D A और दूसरा B C D B। सो फर्स्ट लूप अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, I1P प्लस I1G, IG इंटू G। IG इज द करंट, G इज द रेजिस्टेंस, माइनस ऑफ I2R इज इक्वल टू 0। बट फॉर बैलेंसिंग ऑफ नेटवर्क IG इज इक्वल टू 0। अब IG इज इक्वल टू 0 मैं पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। सो माइनस I2R सेकेंड साइड में I1P इज इक्वल टू I2R। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ऑन अप्लाइंग Kirchhoff's लूप रूल टू द लूप ABCDB, ये BC है इधर, BCDB। तो क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा तो कितना आएगा, I1 माइनस IG इंटू Q। फिर इधर आने के बाद ये करंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, मगर इधर एरो मार्क कहाँ है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, उसका माइनस साइन आ जाएगा। तो I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I2 प्लस IG इंटू S, फिर से माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि हम इधर जाके ऊपर जा रहे हैं, करंट कहाँ आ रहा है, नीचे डायरेक्शन में, हम ऊपर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। करंट कितना है, IG है, रेजिस्टेंस कितना है, G है। तो क्या हो जाएगा, I1 IG इंटू G इज इक्वल टू 0। पूरे ब्रैकेट ओपन कर लिए, I1Q माइनस IG Q माइनस I2 माइनस IGS माइनस IG Q। नाउ फॉर बैलेंसिंग करना, IG इज इक्वल टू 0। तो IG जहाँ पर भी है वहाँ पे 0 पुट कर देना है। So this will become 0, this will become 0, this will become 0. 3 points will become 0. So what will remain, I1Q minus I2S is equal to 0. So send this I2S to second side, it will become plus. इसको दे दिया equation number 2. So dividing equation 1 by 2. So when we divide equation 1 by 2, it will become I1P by I1Q, I2R by I2S, I2 I1 will get cancelled. So P by Q is equal to R by S. So this is the balancing condition for Wheatstone bridge. तो ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द Wheatstone bridge, एंड इन दिस Wheatstone bridge दिस P by Q इज इक्वल टू R by S इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें यहाँ तक डिराइव करना है।
तो ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन। ये डेरिवेशन आज के आज ही ख़त्म कर लेना और ये कंप्लीट होगा तुम्हारा बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बाकी का कल देखेंगे।